Hello people, welcome to my channel All You Want. So I'm back with another interesting video on how not to waste time or how to manage your time. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel, and for any suggestions you can do a comment down. And yeah, let's begin with the video. Scheduling. We can say it is the foremost step and which is the most crucial step to start any task. And before starting any task, you need to learn a skill which is known as prioritizing. For example, as you prioritize your family, your best friend, your friends, your relatives, in that way, you need to prioritize your task day before planning anything. You need to prioritize the most important task on number one and the least important task on number last, or you can skip that also if needed. We would cut that easy by giving an example like you need to do a yoga session, you need to attend your cousin's marriage, and you also need to complete your assignment for submission the next day. So what you can do is you can arrange the task, like first thing you can give priority to completing your assignment, second you can go to the marriage, and after that while returning to the home you can give your 5 minutes to meditation and then you can go to the bed. So this is how you need to arrange prioritizing your task with importance. Waking up early, yes, we will keep it very simple and cut short, because directly if you wake up early you will have more time to complete any task as compared to other people. एंड आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है. सो waking up early is directly proportional to saving your time to have more hours in a day. एंड इफ़ यू वांट तो मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ on how to wake up early. So the next step we can move forward to not wasting a time is to take frequent breaks. Yes, to keep your mind and your body fresh, you really need to take breaks, which is frequently, that too frequently. Okay, you cannot keep your mind and your body tired with very packed routines. Okay, just because you have scheduled your timetable accordingly, so you cannot keep your mind and body tired and packed with that. And taking break which is enough is really important. For example, after a 2 hour of a gymming session, you cannot like retrieve your body for just after a 5 minutes of break. You need to have a longer break, right? So that जो आपका next task है वो ही प्रोडक्टिव हो जैसे कि आपका फर्स्ट टास्क रहा है. उसके लिए आपको बीच बीच में you need to have enough breaks. Discipline is very crucial skill, or we can say very crucial or important task, because being consistent और being disciplined ही आपको एक गोल तक पहुंचने में डायरेक्टली हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं and one day you're not in mood to study, so what you can do is to not break the consistency. What you can do is just take half an hour for your study, and you can take a leave for the whole day to like gain back the power and to gain back the enthusiasm. You can just take a long break, but do not break the consistency. You have to give that half an hour to the study, so that you have that thing in your mind that you haven't break the chain of something. And also अगर आपने consistency या फिर discipline अपना बीच में छोड़ दिया, तो आपका जो प्रीवियस डे का टास्क है वो भी किसी तरह आपके हाथों से जाने लगेगा. सो ताकि आपकी जो पहले की मेहनत है वो भी वेस्ट ना हो, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट. नेक्स्ट वी कम टू मेडिटेशन और एक्सरसाइज. ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था दैट टू कीप योर माइंड एंड योर बॉडी फ्रेश वी हैव टू डू मेडिटेशन एंड वी हैव टू डू एक्सरसाइज, बिकॉज आपकी बॉडी और आपका माइंड ही आपका सारा काम करता है. तो अगर आप उसी की आप उसी की केयर नहीं करेंगे तो हाउ वुड इट वर्क. अब इससे आपका टाइम वेस्ट ना होने का क्या कनेक्शन है, तो वो ये कनेक्शन है कि इफ़ योर माइंड इज़ वेरी फ्रेश एंड योर बॉडी इज़ वेरी फ्रेश,
तो आप हर टास्क बहुत ही प्रोग्रेसिवली कर सकते हैं, एंड इवन आप बहुत ही जल्दी वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, एज यू आर डूइंग सम टास्क आफ्टर गेटिंग टायर्ड और समथिंग. सो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज आपको इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा टू नॉट वेस्ट द टाइम, वी कैन से टू यूटिलाइज द टाइम इन अ बेटर वे. फाइंडिंग सम इंस्पिरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फाइंडिंग सम इंस्पिरेशन सो दैट आप एक रेगुलरली मोटिवेटेड रहें. लाइक इफ़ यू आर preparing for some government exam, you need to have a motivation or a target or some idle person जिसको आप फॉलो करते हैं, सो दैट आप उधर से इंस्पिरेशन ले सकें. बिकॉज एवरीबडी एट अ टाइम डीमोटिवेट भी होता है एंड डी इंस्पायर भी होता है. सो एक अगर आपके माइंड में कोई एक आइडल पर्सन है आपका, या फिर कोई आपकी इंस्पिरेशन है, वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है इनडायरेक्टली. सो आपको एक इंस्पिरेशन अपने लिए रखना एक माइंड में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी कम टू अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस. यस, ये तो एकदम ही डायरेक्टली कनेक्टेड है टू नॉट वेस्ट योर टाइम, उससे एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है. एंड इफ़ यू वांट, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. एंड जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, आप सोशल मीडिया आज के ज़माने पे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गिव सम टाइम. लाइक आप एक टाइम बांध लो कि ठीक है, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही फ़ोन यूज़ करना है. तो उससे क्या होगा, आपका मन भी रहेगा कि ओके फाइन, आई हैव यूज्ड माई सोशल मीडिया, एंड उससे आपके माइंड में भी रहेगा कि मैंने एक टाइम वेस्ट नहीं किया. बिकॉज डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट नॉट टू द लेवल जो कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसके सेक पर आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते. सो डायरेक्टली अगर आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, तो आप उसका भी एक टाइम शेड्यूल कर लो अपने टाइम टेबल में. दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस. येस, ये भले ही बहुत ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू सेव योर टाइम, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जहाँ पर भी बैठ कर स्टडी करते हैं, या फिर जो आपका ऑफिस टेबल है, या फिर कहीं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, सो यू हैव टू कीप योर दैट प्लेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, सो दैट आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज रहे एंड आपका टाइम भी वेस्ट ना हो टू सर्च सम थिंग्स और सम पेन और सम पेपर. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द सराउंडिंग्स, सो दैट आपका माइंड भी उसी तरह काम करे एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल से एंड ऑर्गेनाइज तरीके से ही काम करे आपका माइंड. एंड डेफिनेटली ये आपका टाइम तो बहुत सेव करेगा ही. सो या, लर्न टू से नो. आई वुड से कि ये कोई टिप नहीं है, बट ये एक स्किल है जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी ताकि आप अपना टाइम बचा सकें. अब जैसे कि आप अपना ऑलरेडी टाइम टेबल बना चुके हैं, आप अपनी टास्क जो है प्रायोरिटाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, उस बीच में आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, या फिर कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड आ जाता है टू हैव अ न्यू प्लान विद यू, सो आपको उसके लिए यू हैव टू लर्न कि आप उसे मना कर सको. बिकॉज़ ये एक आदत ही है जो कि आपको मेहनत करके, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी. आई वुड से, बिकॉज़ मेरे अंदर भी ये हैबिट नहीं थी, बट इससे आप ही का टाइम बचेगा एंड आप ही का फ़ायदा होगा. सो यू हैव टू लर्न द स्किल टू से नो. Last come the point which is leave a buffer time in between. जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में भी ये चीज़ कही थी कि आपके पास एक बफर टाइम होना चाहिए, एक अच्छे खासा ब्रेक का टाइम होना चाहिए. ये नहीं कि आप 2 घंटे के टास्क के बाद, बिकॉज़ आपने प्लान सब कुछ किया हुआ है, तो इस सिर्फ 5 मिनट का ही ब्रेक दे सकते हो. नो, टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव आपको एक बफर टाइम, एक अच्छा खासा टाइम ऑफ ब्रेक होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक इंसान खाना तो 15 से 20 मिनट में खा सकता है, बट बिकॉज़ आपका जो माइंड है वो हर टाइम उसी में रहेगा कि मुझे 15 मिनट के अंदर ही अपना खाना ख़त्म करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप 1 घंटा रेस्ट एंड खाने दोनों चीज़ को दो. उससे आपके माइंड के पास भी रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा, और आप नेक्स्ट टास्क पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे एंड आपका माइंड फ्रेश एंड बॉडी भी फ्रेश रहेगी. सो जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए काम करना है, उतना ही इक्वली, आई वुड से इक्वली इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.